Hello and welcome to Ease UPSC CSE. If you have not seen the introductory video, I would like to introduce myself in very brief that I am an UPSC aspirant here to help you out for sociology. We will cover all the PYQs along with the chapters and all my notes that I have made from different sources. Okay, so before that, one disclaimer. It is not another video for views and likes. I am doing this out of altruism to give the community to the best of my ability. Okay, so yeah, and we will understand the importance of sociology and the importance of optional subjects. We all know that mains is of 1750 marks in 7 papers, and in which 2 papers are of optional, which consists of 500 marks, and we get selected at 900. I would say not selected, but we get a good rank at 900 marks. And one advice I would like to give: GS4 ethics paper along with essay, each of 250 consisting 500 compiling. These are another 2 papers. So I guess you should prepare for this very thoroughly so that you stand very strong in the UPSC paper. So I hope you are well versed and you got the idea of the importance of optional, and these I will try to teach you this particular subject also, because what I felt was there are plenty of YouTube channels studying geography, polity, history, and each and everything, but there is the lack of this particular thing. So I will help you out with sociology. Completing the main important ingredient is the previous year questions. Each and every answer I will provide, and the GS4 I will try to, okay, if I get time, because I okay, so here it is. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी आखिर होता क्या है, क्योंकि हमें सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए. इफ़ यू हैव डन, कोई बात नहीं, आई एम हेयर फॉर हेल्पिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट. सोशियोलॉजी मतलब होता है समाज, दैट वी लिव इन. आई मीन सोशियो मीन समाज एंड लॉजी मीन्स शास्त्र, और वेरी सिंपली टू स्टडी. हाँ, ये तो कोई भी बता सकता था, बहुत ईजी है, लेकिन उसको हमें समझना होगा. दैट सोशियो इज एक्चुअली अ वर्ड दैट इज केम आउट फ्रॉम सोसाइटी. नाउ व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी इज यू एंड मी. वी मेक द सोसाइटी. इफ यू आर देयर एंड आई एम देयर, वी विल मेक अ सोसाइटी. यू, your family, your teacher, your friends, and just like that many family, many households, many teachers will make up the society. I hope you are clear with what society is. Next, is this society? No. Society is our behavior, our relationship, and our environment. Do not forget that. Okay, तो आर सोसाइटी इज मेड अप ऑफ दीज थिंग्स. हमारा समाज क्या होता है? हमारे रिश्ते, हमारा व्यवहार और हमारा पर्यावरण. तो हमें बस यही पढ़ना है. इट इज़ वेरी इजी. लेकिन हमें पढ़ना क्यों है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड वाई बिहाइंड एवरीथिंग. बहुत इजी होता है ये बोल देना कि सोशियोलॉजी बस सोसाइटी की स्टडी है, लेकिन स्टडी क्या है, सोसाइटी क्या है? चलो ठीक है, सोसाइटी समझ आया, तुम, हम, हमारा व्यवहार, एवरीथिंग. लेकिन ये पढ़ना क्यों है? ये हमें पढ़ना इसलिए है टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स. हर चीज़ के पीछे एक वाई होता है. वाई डू वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स? क्यों हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, और डेथ को हम, उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं, बट उन दोनों को सेलिब्रेट करने का एक डिफरेंट मैनर क्यों होता है? क्यों हम दिवाली पे दिए जलाते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? नो, not about Diwali only. I'm talking about each and every festival. Why do we celebrate festivals? Why do we celebrate honesty but we do not celebrate dishonesty? क्यों सच बोलना सही है और झूठ बोलना गलत है? These are the questions to understand why. झूठ बोलने से अगर हमें कुछ मिल रहा है तो वो गलत कैसे हुआ? ठीक है, झूठ बोलने से अगर हमारा फ़ायदा हो रहा है तो हम उसे गलत क्यों कहते हैं? वाई इज़ झूठ is wrong and such is right? The question is that
जस्ट लाइक दैट जो हमारे अदर चीज़ें हैं, अदर प्रॉब्लम से कि क्यों हमारा व्यवहार पुअर के साथ अलग होता है और रिच के साथ अलग होता है, क्यों एक ऑफिसर के साथ अलग होता है, क्यों एक नॉर्मल पीपल के साथ अलग होता है, और हमारा कल्चर, क्यों हम इस तरीके के कपड़े पहनते हैं और उस तरीके के नहीं, हमारी हैबिट्स कि हम क्यों झूठ बोलते हैं, हम क्यों सच बोलते हैं, और क्या चीज़ अच्छी है और हम एक व्यवहार क्यों करते हैं। तो वाई बिहाइंड एवरीथिंग, जो चीज़ हम कर रहे हैं, वाई द हेल वी आर डूइंग दैट, आर बिहेवियर, हमारा बिहेवियर is different with our friends and it is different with our teacher, it is different with the random person. Why it is so? Materialism. Why we are running behind getting each and everything, why we are running behind job to get material, that is called materialism. Why we are having a lot of desires, why we are having a lot of dreams, and why these dreams are considered positive but some other dreams are considered negative. जस्ट लाइक अगर हमें कुछ मटेरियल ही लेना है, अगर हमें कुछ सक्सेसफुल होना है, हमें बहुत कुछ वेल्थ गेन करनी है, तो हम चोरी करके भी कर सकते हैं. बट वाई स्टीलिंग इज नेगेटिव बट हैविंग ए जॉब इज पॉजिटिव. द वाई बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग इज द नीड टू स्टडी आवर सोसाइटी. हम हमारा व्यवहार, हमारा पर्यावरण, हमारे रिश्ते, each and everything need to get study to understand the why behind what we are doing. समझ आया? यही है सोशियोलॉजी कि हमें समाज को पढ़ना है. समाज को पढ़ने का मतलब क्या हुआ? वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग. कि अगर समाज में कोई पॉलिटिकल पर्टिकुलर बिहेवियर है, पॉलिटिकल सिस्टम है, तो वो क्यों है? जो हमारे यहाँ है वो दूसरों के यहाँ क्यों नहीं है? द political system that we have in our country is totally different from the political system of US. Understanding why it is so? What is the economic condition of our country and why it is so? समझ आया? Why is the prevalence of poverty? Why some people are poor and some are rich? Why so? तो हमें ये सब पढ़ना है कि सोशियोलॉजी आखिर है क्या, हमारा समाज है, हमारे समाज में जो भी प्रॉब्लम्स है वो वैसी क्यों है. और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है. हमें यहाँ इंडिविजुअल से स्टार्ट करना है कि अगर एक इंडिविजुअल मीन्स एक पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन, उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसके क्या ड्रीम्स होते हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसका क्या बिहेवियर होता है, उसके क्या रिलेशंस होते हैं, वो हमें पढ़ना है और वो ऐसे क्यों होते हैं. एंड when it comes to the society, the same thing is why one society is different from other. एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी जैसी नहीं होती. इंडियन सोसाइटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी प्रेवलेंट इन यूएस. ये डिफरेंसेस आखिर क्यों? और क्यों एक सोसाइटी में जो चीज़ अच्छी मानी जाती है वही चीज़ दूसरी सोसाइटी में बुरी मानी जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, we will take an example from the current, like live-in relationship. It is not so prevalent in India. It is like a taboo for the senior citizens and people of our country, but it is very very much normal in US, Britain. Why so? Okay, to understand the why, what are the right things, what are the wrong things, we have to understand each and everything in the ambit of sociology. Got it? बट हमें बह नहीं जाना है. हमें ये याद रखना है कि हम यूपीएससी के लिए पढ़ने आए हैं. तो यूपीएससी ने हमें सिलेबस डिफ़ाइन किया है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है. तो बस हमें वही पढ़ना है. दैट इज़ इट. आई होप ये सब कुछ आपको समझ आ गया है. नाउ लेट अस जंप टू द सिलेबस, ताकि हमें ये समझ आ जाए आखिर हमें पढ़ना क्या है. उससे पहले बस एक छोटी सी बात फिर से मैं रिपीट करूँगी कि यहाँ पे 2 पेपर होते हैं और फर्स्ट पेपर में अब मैं बताऊँगी आखिर होता क्या है. फर्स्ट पेपर में सारी थियरीज है और सेकंड पेपर में उसका एप्लीकेशन है. अब ये थियरीज और एप्लीकेशन का मतलब,
फर्स्ट पेपर में हमने सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट बनाया, वी मेड द सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। आखिर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट मीन्स सोशल साइंटिस्ट, द सोशियोलॉजिस्ट, जिन्होंने सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट बनाया। पहले ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, ओके। तो उसको बनाया, तो उसको बनाने के बाद उन्होंने कुछ थ्योरीज दी, कुछ मॉडल्स दिए कि हमें ऐसे सोसाइटी को पढ़ना चाहिए, या फिर इनकी जो आइडियोलॉजी थी कि सोसाइटी ऐसी होती है, वो सारा मोस्टली अबाउट रिलीजन, ईच एंड एवरीथिंग। इस चीज़ में हम वो पढ़ेंगे, और इसके अंदर इसका एप्लीकेशन और इंडियन कंटेक्स्ट में, मोस्टली दिस पेपर डील्स विद इंडियन कंटेक्स्ट, और इसके अंदर है ग्लोबल कंटेक्स्ट, ओके। कि क्या जो सारी थ्योरीज नॉट ओनली इंडियन बट मोस्टली दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ फॉरेन, और यू कैन से द वेस्टर्न थिंकर्स। और इसमें हम इंडियन थिंकर्स पढ़ेंगे, और इंडिया की पर्सपेक्टिव में जो सोशियोलॉजी होती है वो हमें इसमें पढ़ना है, और इसमें हमें पढ़ना है ग्लोबल। आई होप अब आप बिल्कुल क्लियर हैं कि फर्स्ट पेपर में क्या होता है, सेकंड पेपर में क्या होता है, एंड सोशियोलॉजी आखिर क्या होता है। सो लेट अस जंप टू दी सिलेबस, ओके। ये सिलेबस मेरा बताने का सबसे बड़ा कारण ये है ताकि आपको समझ आए आखिर हम पढ़ने के वाले हैं। समाज बोल दिया, उसका सारा इम्प्लीकेशन बोल दिया, द प्रॉब्लम्स, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन हमें यूपीएससी के एम्बिट में रहना है, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दी जाती है बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, टेकिंग लैक्स ऑफ रुपीज़ फॉर कंप्लीटिंग द ऑप्शनल्स। ऐसा कुछ नहीं होता है, वी जस्ट हैव टू कीप अर अप्रोच वेरी क्लियर। और मैं यहाँ डिस्क्लोज करना चाहूँगी दैट आई यूज नितिन सांगवान सर्स बुक, एंड स्लीपी क्लासेस के कुछ थे, एंड एक और यूट्यूब चैनल है, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम बट आई यूज दैट ऑल्सो, एंड मैनी यूट्यूब चैनल्स, okay. So I'm giving the credit, and we will use these resources in the fair use policy, okay. We are giving the credit, and now we should understand what the syllabus is, okay. I am getting you through the syllabus so that you can understand what the hell we are going to study. The chapter 1 is sociology as a discipline. समझेंगे आखिर सोशियोलॉजी है क्या और क्यों वो एमर्ज हुई थी। इन सेकेंड चैप्टर सोशियोलॉजी एज साइंस, साइंटिफिक मेथड, हम इसको, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, हमें बताएगा कि आखिर सोशियोलॉजी को साइंस क्यों कहा जाता है। इन थर्ड चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स, या अभी मैंने बताया ना कि हमें सोसाइटी के अंदर जो प्रेवलेंट चीज़ें हैं उनका क्वेश्चन ढूंढना है, द वाई बिहाइंड दैट, तो उसको ढूंढने का कुछ तो तरीका होगा। सो वी हैव टू फाइंड द रिसर्च मेथड्स, ओके। There are many. We will, go through each and everything. Don't you worry. The social thinkers. That was I was talking about कि जिन्होंने आखिर इसको एज अ सब्जेक्ट, एज एन इंस्टीट्यूशन इसको एस्टेब्लिश किया, हम उन्हें पढ़ेंगे, ओके। जैसे मार्क्स, डर्कहाइम, मैक्स वेबर, पार्सन। डोंट यू वरी, आपको धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा। ये बस वो बड़े नेम्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है अपना, किसमें, सोशियोलॉजी को डेवलप करने में, और इनकी कुछ आइडियोलॉजीज रही है जो कि बहुत ज़्यादा आई कैचिंग है। वी विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ऑल्सो। नाउ दिस चैप्टर 5 इज स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब होता है डिविजन, और मोबिलिटी यानी कैसे वन पर्सन गोज टू अनदर लेवल। स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स डिफरेंट लेवल्स प्रेजेंट इन अ सोसाइटी, कुछ पुअर होते हैं, कुछ मिडिल होते हैं, कुछ रिच होते हैं, और मोबिलिटी मीन्स कैसे हम एक से दूसरे में जाते हैं, ठीक है। दिस चैप्टर इज समथिंग लाइक दैट, ओके। सी पॉवर्टी, एक्सक्लूजन, हिरार्की, वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। द चैप्टर 6 इज वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, यानी जो हम काम करते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक लाइफ है, उसका सोशियोलॉजिकल लेंस से क्या मीनिंग है, हम वो अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और 7th चैप्टर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, जो पॉलिटी हमारी चलती है दुनिया में, जो राजनीति चल रही है, उसके ऊपर जो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने बोला है कि आखिर पावर और ये सब कुछ क्या होती है, वी विल अंडरस्टैंड दैट। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, चैप्टर नंबर 8 इज रिलीजन, जो हमारा धर्म होता है उसका क्या रेलेवेंस है, उसके क्या फंक्शन है और क्या डिसफंक्शन है, कैसे वो अच्छा है, कैसे वो बुरा है, ईच एंड एवरीथिंग, ओके। एंड चैप्टर 9 सिस्टम ऑफ किनशिप।
किनशिप मतलब होता है हमारे रिलेशन। किनशिप मतलब अगर हम बहुत सिंपल टर्म्स में समझें तो हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स एंड ईच एंड एवरी स्पेशल यानी क्लोज रिलेशन, उन सबको हम किन बोलते हैं। ओके, तो किनशिप तो हमारे जो आपस में संबंध है, एक्चुअली ये चैप्टर उसी से डील करता है, जैसे फैमिली, हाउस होल्ड एंड ईच एंड एवरीथिंग, मैरिज। ओके, उसमें हम ये सब पढ़ेंगे। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 10, सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब लास्ट में हमें ये भी पढ़ना है कि आखिर एक सोसाइटी में चेंज आता कैसे है, चेंज का मतलब क्या होता है। जैसे पहले जीन्स पहनना बुरा माना जाता था, आज जीन्स पहनना इज़ वेरी वेरी कॉमन। आज शॉर्ट ड्रेस पहनना अनकॉमन माना जाता है इन वेरी बिग सिटीज़ ओनली। समझ आया? सो दिस इज़ कॉल्ड चेंज। एक टाइम पे ये भी कॉमन हो जाएगा, आई डोंट नो फिर क्या आएगा, बट या सो पहले इंटरकास्ट मैरिज बहुत ज़्यादा कम होती थी, लेकिन आज इट इज़ वेरी प्रेवलेंट। सो दिस इज़ एंड मैनी थिंग्स लाइक दैट वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि क्या एजेंट्स होते हैं, कैसे चेंज हुआ, कैसे एजुकेशन ने उसको हेल्प किया, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, एंड देन हियर इज द पेपर 2. So here we are talking about the paper 1 only. I hope you are understand well versed with the syllabus, and I guess we should start with the chapter 1, or I'm thinking we will do it in the next video with a fresh mood. So here I am going to tell you the course of action मैं कैसे करने वाली हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, बहुत अच्छी बुक है नितिन सांगवान सर की। इन्होंने सारे जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स है बहुत अच्छे से समझाए हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम इस बुक का एक भी चैप्टर, एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बुक रीडिंग नहीं। उसके बाद आई हैव मेड माई ओन नोट्स फ्रॉम वेरियस यूट्यूब चैनल्स, इसी के नीचे या दीज वी विल अंडरस्टैंड दीज। जो नोट्स हैं आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं, और अदरवाइज आई विल शेयर। ओके, इसको समझ जाइएगा। इसको करने के बाद हम पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, इस चैप्टर के अंदर जो भी पूछा गया है वी विल डील विद दैट, एंड आई विल प्रिपेयर यू विद दिस एंड यू विल बी डन। इसके अलावा इस चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, you will be done with that. Okay, so I guess we should stop the video here. And how's the Josh? You should be very very enthusiastic to understand the sociology, and I will try to complete it as soon as possible so that you can focus on the upcoming prelims. Okay, thank you so much. We will meet in the next chapter where we will be dealing with the chapter 1. Okay.